Now I've shared the screen, one PPT. Are you able to see this PPT? C programming basics pointers in C. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. So today we'll move for a next topic, pointers in C. Okay. While studying the for loop or nested for loop, we have already studied the array. Okay. So array, pointers, these are the derived data types in C. Okay. These data types are basically derived from your basic data types. Okay. That is your integer, float, character. These are the basic, and void. These are the basic data types, and or primary data set types we called it as. And array, pointer, structures, unions, these are the derived data types. So pointer is a type of a derived data type. Okay. Pointer is a type of a derived data type. So whenever we declare any primary data type means integer, float, character, double. These are the primary data types. Okay. Integer may be alag alag types hai, short integer, long integer, unsigned integer, sign integer. Okay. So whenever we declare this primary data type, the every primary data type is allocated with some memory location. Okay. So variable is nothing but what, a name given to a memory location, and we are going to define a type of a variable. That means which type of a data we are going to store into it. Okay. So every variable will get some particular number of memory locations. Suppose if I take integer, so if it is a 32-bit operating, it is again depend on operating system. So for integer, generally it takes 2 or 4 bytes. Okay. If I take character, it will take only 1 byte. Okay. If I take float, it will take 2 or 4 byte as per the your number of bit operating system. It depends on that number of bit your system is, it depends on that. Okay. So of so if I take an example that integer will take a 4 bytes. So this every byte, 4 byte memory location. So every byte is having a address. Every byte is having what? Address. Okay. So every variable is having a address in memory. Whatever variable we are declaring, that variables are nothing but a name given to the memory locations. Okay. So every variable is having some particular address. Okay. हर एक variable का खुद का एक address होता है. Okay. And pointers, what is a pointer? Pointer is a derived data type. It is also a data type. But the use of pointer is to save the address of variable. Okay. Pointer का काम क्या है? It will save the address of variable. Pointer का काम है कि वो variable का address save करता है. Okay. Uh, that is the work of a pointer. If I say, suppose I have a one student. If I take a student number 1. Okay. So student 1 is a my variable, and in that I have put a data 100. Okay. So student 1, suppose its roll number is 25. So I have take student 1 is a name of a variable, and 25 its roll number. Okay. Where it is living, suppose that student 1 is living into the room number 4. Okay. So the student 1 is having a value 25. उसका वैल्यू क्या है? 25 है, पर उसका एड्रेस क्या है? रूम नंबर 4. So in pointer it will save the address, that is room number 4 will be saved into the pointer. So pointer का काम क्या है? जो भी आप वेरिएबल यूज कर रहे हैं उस वेरिएबल का एड्रेस सेव करेगा. Okay. And we can access that variable by using address, that means by using pointer. Okay. So the pointer generally used for giving a reference to a particular data. Okay. It is used for accessing a data by various method, and to access the memory locations. Okay. To access the memory locations we are using a pointers, because pointer contains the address of variable. नॉर्मल वेरिएबल के अंदर हम डेटा सेव करते हैं, पर पॉइंटर के अंदर हम एड्रेस सेव करते हैं. ओके. पॉइंटर के अंदर एड्रेस सेव किया जाता है. सो दिस इज अगेन अ डेटा टाइप. सो उसे भी डिक्लेयर करना पड़ेगा. So pointer is declared. Okay. Pointer is declared by using a operator star. Okay. So pointer declare करने के लिए first we have to
कंसिडर, पहले आपको सोचना पड़ेगा कि मुझे पॉइंटर कौन से डेटा टाइप के लिए चाहिए। अगर मुझे पॉइंटर इंटीजर डेटा टाइप के लिए चाहिए तो आई विल डिक्लेयर पॉइंटर एज अ इंटीजर स्टार p1। ओके, सो पॉइंटर इज ऑलवेज डिक्लेयर विथ ऑपरेटर स्टार। ओके, कोई भी पॉइंटर है तो उसे डिक्लेरेशन में डिक्लेयर करते समय इन डिक्लेरेशन पार्ट, एक्सेसिंग पार्ट अलग है, डिक्लेरेशन पार्ट अलग है। ओके, एक्सेसिंग हम प्रोग्रामिंग में करेंगे, हाउ टू यूज पॉइंटर, यूज करते समय कैसे यूज करना है। डिक्लेयर करते समय स्टार ऑपरेटर यूज किया जाता है। ओके, सो हियर इंटीजर, ये इंटीजर स्टार p1 लिखा है मैंने। सो स्टार p1 मतलब दिस इज अ पॉइंटर p1। आप कौन सा भी नाम दे सकते हैं। नाम देने के लिए while giving a name we have to use our rules। okay, we have to use that our rules, that name should be start with alphanumerical character। okay, so that rules we have to use, but at the start कंपल्सरी वी हैव टू यूज स्टार ऑपरेटर। कंपल्सरी हमें एस्ट्रिक यूज करना पड़ता है, ये एस्ट्रिक, ओके, ये हमें यूज करना पड़ता है। so that becomes a pointer. Now here I declare a pointer with integer। okay, so this pointer p1 can save the address of integer variable। okay, integer variable, so यहाँ पे मैंने एक साथ डिक्लेयर किया है पॉइंटर p1, पॉइंटर p2 एंड वेरिएबल var। ये वेरिएबल है, उसका नाम दिया है मैंने, सपोज नहीं तो वेरिएबल v1 भी नाम दे सकते हैं, var इक्वल टू 5। ऐसे एक लाइन में डिक्लेयर किया है। okay, just a second। so I can declare like this way also, integer स्टार p1। ठीक है, दूसरा इंटीजर स्टार p2 एंड वेरिएबल इंटीजर var equal to 5। we can declare in one line or we can declare in सेपरेटली ऑल्सो। ओके, जैसे मल्टीपल इंटीजर्स हम एक लाइन में डिक्लेयर करते हैं ना, वैसे ही यहाँ पे एक लाइन में डिक्लेयर किया, नहीं तो आप अलग अलग डिक्लेयर कर सकते हैं। सो दिस इज द वे वी डिक्लेयर अ पॉइंटर, दिस इज द वे वी डिक्लेयर अ पॉइंटर। दिस पॉइंटर इज ऑफ टाइप इंटीजर, सो इट कैन सेव द एड्रेस ऑफ इंटीजर वेरिएबल ओनली। सपोज मेरा एक वेरिएबल है फ्लोट, फ्लोट var वी सपोज v2 इक्वल टू 2.5। ठीक है, ये फ्लोट का f स्मॉल होना चाहिए। ये एक मेरा फ्लोट वेरिएबल है, इसके लिए कौन कैसे पॉइंटर डिक्लेयर करेंगे, उसके लिए पॉइंटर डिक्लेयर करेंगे हम फ्लोट टाइप का। सो फ्लोट इसके आगे हम क्या लिखेंगे, स्टार p2। ये p1 p2 नाम देना जरूरी नहीं है, आप अलग भी नाम दे सकते हैं abc वगैरह, बट यू हैव टू start the name with asterisk। okay, so p2, so this p2 is a pointer because we have declared with star, and it is of which type, float type, and it will save the address of which variable, float type variable। okay, so same way अगर मुझे char के लिए करना है तो हम क्या करेंगे, char, ये you are also doing this typo mistakes, don't do that। char अगर मेरा एक कैरेक्टर है a, char ch1 इक्वल टू उसका वैल्यू क्या है a, दिस इज माय वन कैरेक्टर। और कैर का अगर पॉइंटर डिक्लेयर करना है तो कैर से ही शुरू करना पड़ेगा, कैर स्टार p3। सो p3 इज अ पॉइंटर फॉर कैरेक्टर टाइप ऑफ डेटा, p2 is a pointer for float type of data, and p1 is a pointer for integer type of data। the same way डबल के लिए करना है तो हम डबल के लिए भी कर सकते हैं। ओके, सेम वे अगर हमें डबल के लिए करना है तो हम डबल के लिए भी कर सकते हैं। ओके, सो दिस इज द वे वी डिक्लेयर अ पॉइंटर। हाउ वी डिक्लेयर अ पॉइंटर, द पॉइंटर इज ऑफ विच डेटा टाइप,
जिस वेरिएबल के लिए हमें वो पॉइंटर यूज करना है उसका ही हमें डेटा टाइप यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा। आइदर अगर हम इंटीजर वेरिएबल का इसमें एड्रेस सेव करने वाले हैं तो इंटीजर ही आएगा, फ्लोट वेरिएबल का एड्रेस सेव करने वाले हैं तो फ्लोट आएगा, कैरेक्टर वेरिएबल का एड्रेस सेव करने वाले हैं तो कैरेक्टर आएगा। ओके, so and pointer, it's how it is declare, it is declare or the name of a pointer start with asterisk। ओके, कोई भी पॉइंटर है तो asterisk से शुरू होता है। ओके, this is the way we declare a pointer. Another way we declare a pointer is this one। okay, so these are the two pointers here. What I have did, I have mentioned the asterisk here, int asterisk space p1 p2, so this p1 p2 are the pointers। okay, so we can declare like this। float के लिए करना है तो कैसे करेंगे, float asterisk and then p1 comma p2, so this p1 p2 both are pointers, both are pointers। single pointer लेना है तो this way। okay, so this is a float type of pointer p2। okay, like this way we can declare। okay, first is जो भी नाम है उसके सामने एस्ट्रिक लिखेंगे, अदरवाइज जो भी उसका डेटा टाइप है उसके बाद इमीडिएटली एस्ट्रिक लिखेंगे। दिस आर द टू वेज टू डिक्लेयर द पॉइंटर, दिस आर द टू वेज टू डिक्लेयर द पॉइंटर। ओके, this is the declaration part। before using it, before applying it into the main code or anywhere, we have to first declare it। okay, so we have declared it। so what a pointer will do, suppose this var is a pointer और उसका value 10 है, so this var, its value is 10। okay, the data inside it's 10, and this 0x7 ff5ed9, this is the address of memory location। okay, and this address of memory location will be saved into the pointer। okay, variable में क्या रहता है, variable will save the data, variable will save the data and pointer will save the address of variable। okay, pointer will save the address of variable, right? So by using this pointer we can access the value at this address। okay, pointer use करके, जैसे अगर मुझे var की वैल्यू क्या है 10 है, ओके, var की वैल्यू क्या है 10 है, तो हम पॉइंटर का जो एड्रेस है उसकी वैल्यू क्या है, वो भी 10 है, मतलब 07xff है, ये इसकी वैल्यू क्या है 10 है। सो हमें एड्रेस से अगर वैल्यू एक्सेस करनी है तो हम पॉइंटर यूज करते हैं इंस्टेड ऑफ यूजिंग नेम। नेम यूज करने की बजाय अगर मुझे एड्रेस यूज करके ये 10 वैल्यू ढूंढना है तो वी कैन यूज अ pointer। okay, so we'll see simple programs of pointer। are you able to see online compiler here? No, ma'am. Now are you able to see this compiler? okay, are you able to see this compiler now, online compiler? Yes, ma'am. okay. So this is one variable, int variable, and I have, it is an integer type of variable var। okay, and I have stored the value is 20। this is integer pointer p1। नाउ हाउ टू असाइन एड्रेस। ओके, पॉइंटर क्या करता है, वेरिएबल का एड्रेस सेव करता है, पर एड्रेस सेव करने के लिए वी हैव ऑलरेडी यूज्ड इन स्कैनएफ, क्या करते हैं हम,
एड्रेस अगर हमें निकालना है तो वी आर यूजिंग एम्परसेंट, ओके, बिफोर अ वेरिएबल। वेरिएबल से पहले हम ये सिंबल यूज करते हैं एम्परसेंट का। सो P1 इक्वल टू एम्परसेंट वार ऐसे लिखेंगे तो क्या होगा, ये जो वेरिएबल वार है उसका एड्रेस P1 में चला जाएगा। कहाँ पे चला जाएगा? P1 में चला जाएगा। ओके, सो पहले हम क्या करते हैं, वी just check what is the value at variable, what is the value, okay, इसका वैल्यू क्या है वेरिएबल का। सो वेरिएबल का वैल्यू चेक करने के लिए हम क्या मैसेज यूज करते हैं, वैल्यू ऑफ वेरिएबल दैट इज परसेंटेज डी, बिकॉज इट इज इंटीजर एंड वार। अगर ये पहला प्रिंटफ है तो हमें यहाँ पे वैल्यू मिलेगा 20, and here I use percentage x, okay, so percentage x is a format specifier for what? Can anyone tell me percentage x is for which type of data or which type of number it is? जैसे परसेंटेज डी है तो वो इंटीजर के लिए है, बट इंटीजर डेसिमल। x is for, yes yes, someone told the answer, please repeat it again. Hexadecimal. Yes, percentage x is for hexadecimal, okay, because the address of memory location is generally represented in the hexadecimal form. Okay, if you want to represent into the octal, you can say percentage o. Okay, now we'll represent this in hexadecimal, and here I use a symbol ampersand before a var. So what it will display? It will display its address, memory location address, okay, address of this var in terms of percentage x, means in terms of hexadecimal. Okay, so we'll run this program. So the value of var is what? 20. And the address of variable is this 40477C34. Okay, this is the address. So हमने पहले क्या किया, एड्रेस चेक किया। अभी हम ये क्या करेंगे, दिस इज आवर इंस्ट्रक्शन, ये मैं यहाँ पे लिखती हूँ कट करके सपोज। सिंपली पहले मैंने क्या किया है, एड्रेस डिस्प्ले किया है। ओके, नाउ व्हाट आई हैव टू डू, एड्रेस स्टोर्ड इनटू द P1। ओके, P1 में क्या एड्रेस स्टोर किया है वो मुझे चेक करना है। ये मैंने क्या किया, एंड इक्वल टू P1। सो इन द P1 what it will store, it will store the address of variable 1। so ये जो एड्रेस है जो P1 में स्टोर है वो मुझे वैसे ही दिखाई देना चाहिए। Okay, so whenever you run every time, because there is a dynamic memory allocations while you are running a program, so address of variable get changed, okay, but what we have to check, whatever address is there of var, that same address will store into the P1। आप यहाँ पे check कर सकते हैं, the value is what, 20, and the address of variable is 62543574, and the same is stored into the 62543574। okay, now this is the way, line number 12, check the line number 12, this is the way we are saving the address of variable, this is the way we are saving the address of variable। suppose this my variable is float, तो मुझे इसका टाइप फ्लोट लेना पड़ेगा, इसका वैल्यू मैं लेती हूँ 20.234। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे पॉइंटर भी क्या लेना पड़ेगा, फ्लोट। ठीक है, और ये फ्लोट को डिस्प्ले करने के लिए हम क्या करेंगे, विल यूज हियर एफ। ओके, नाउ रेस्ट ऑफ द थिंग विल बी सेम बिकॉज इट इज टू डिस्प्ले द, ओके, सो अगर मेरा वेरिएबल फ्लोट टाइप का है तो उसका पॉइंटर भी हमें कैसे लेना पड़ेगा, फ्लोट टाइप का ही लेना पड़ेगा। ओके, सो विल रन दिस प्रोग्राम।
1 second. Again, it is an error. Okay, now see, the value of VAR is this. Okay, what we have declared. Then address of variable is 769DD34, and this is also same in P1, 769DD34. Okay, so the pointer we have to declare with a data type for which it is used to save the address. Okay, जिसका एड्रेस सेव करना है उसका ही डेटा टाइप हमें पॉइंटर को मेंशन करना पड़ेगा. Now, how to access the value? How to access the value? By using the pointer. Okay. So next command क्या है हमारा? हमें pointer में से value access करना है. Okay. So value of variable. Value of var variable using pointer. ठीक है. Now see it carefully. मुझे वैल्यू है तो क्या है वैल्यू? फ्लोट वैल्यू है तो मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? परसेंटेज x की जगह पे f लेना पड़ेगा. और P1 में क्या स्टोर है? एड्रेस स्टोर है, एड्रेस. पर ये एड्रेस यूज करके मुझे वैल्यू देखना है. तो वैल्यू क्या है? 20.234 लिखा है मैंने, तो 20.23999 होता है वो फ्लोट में. सो ये जो वैल्यू अगर मुझे एक्सेस करनी है तो आई विल यूज हियर एस्ट्रिक. What I will use here? Asterisk. Now see carefully. First, what we have did? First printf. We have simple variable var we have printed. Then and ampersand use kiya. This ampersand will display its address. Okay. And now this address we assign. Line number 11. We address this assigned into the P1. So P1 के अंदर वो address चला गया P1. So if we write simply P1, it will display whatever inside the P1. अगर हम सिंपली P1 लिखते हैं तो P1 के अंदर क्या है? एड्रेस है वेरिएबल का, वो डिस्प्ले हुआ है. पर उस एड्रेस के अंदर जो भी डेटा है वो अगर मुझे चाहिए तो हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे? स्टार. ओके, एस्ट्रिक यूज करेंगे, एस्ट्रिक P1. सो इफ वी वांट टू, लाइन नंबर 11 is the way to assign address of variable into the pointer. Okay, वेरिएबल का एड्रेस पॉइंटर में डालने के लिए व्हाट इज द मेथड? दिस इज द मेथड, लाइन नंबर 11. ओके, नाउ व्हाट इज द एड्रेस प्रेजेंट इनटू दैट पॉइंटर देखना है तो सिंपली वो पॉइंटर प्रिंट करेंगे P1. एंड इफ यू वांट टू चेक द वैल्यू एट दैट एड्रेस, so we will put the star over here or asterisk over here. Okay, this is the way we declare a pointer. Okay, there are some operators we can use with the pointers. Okay, that is increment operator we can use with the pointer. Okay, so मैं यहाँ पे क्या करती हूँ? P1 प्लस प्लस कर देती हूँ. And I simply print the P1. ये मैंने फ्लोट किया है, यहाँ पे मुझे x करना पड़ेगा. Now you can check. Okay, see carefully. The value of variable is, ये वेरिएबल का हमारा var का एड्रेस है D4C960B4, और ये D4C960B4 ही हमारे कहाँ पे सेव हुआ है? P1 में. ठीक है, यहाँ पे प्रोग्राम देखो. अभी
पहले हमने नॉर्मल वेरिएबल का वैल्यू प्रिंट किया, फिर एंड वेरिएबल मतलब उसका एड्रेस प्रिंट किया, फिर एड्रेस हमने कहाँ पे डाला, पॉइंटर में डाला, लाइन नंबर 10, एंड वी प्रिंट दिस एड्रेस P1। सो जो एड्रेस है वार का वही P1 में आया है, और फिर मैंने वो एड्रेस को बढ़ाया है P1 प्लस प्लस। सो वो क्या करता है, जो भी मेरे वेरिएबल का एड्रेस है उससे आगे चला जाता है, ओके, नेक्स्ट लोकेशन पे वो चला जाता है। जो भी मेरा P1 का एड्रेस है उसके नेक्स्ट लोकेशन पे वो चला जाएगा, ओके। सो हियर इट इज शोइंग मी द नेक्स्ट लोकेशन D4। ये है मेरा प्रीवियस बिफोर इंक्रीमेंट, और आफ्टर इंक्रीमेंट अभी यहाँ पे देखो D4 C960 B8 आया है, ओके। नाउ यू आर एक्सपेक्टिंग कि हाँ मैडम B4 था, उसके बाद B5 आना चाहिए था, ओके। नाउ व्हाई इट इज B8? बिकॉज नाउ हियर इन दिस ऑपरेटिंग सिस्टम दिस इंटीजर इज टेकिंग 4 बाइट्स, ओके। ये इंटीजर को कितने बाइट्स लगे हैं यहाँ पे, 4 बाइट्स। तो ये इंटीजर का एड्रेस कहाँ से शुरू होता है, 4 5 6 7, 4 5 6 7 D4, ये लास्ट का 4 है ना, ये 4। ऐसे ही 4 एड्रेसेस रहेंगे इसके, D4 C960 B4 B5 B6 B7, ओके। ये ऐसे 4 मेमोरी लोकेशंस यूज किए। उसके बाद का मेमोरी लोकेशन क्या है, B8। सो हियर आई विल गेट दिस B8। अगर मैं माइनस करती हूं तो यहाँ पे क्या आएगा, B4 के बैक चला जाएगा वो 4 लोकेशंस, एंड इट विल स्टार्ट विथ 0, ओके। सो अभी हम यहाँ पे पॉइंटर को क्या करते हैं, डिक्रीमेंट। सो ये प्रीवियस वाले वेरिएबल के लोकेशन पे चला जाएगा, माइनस माइनस। ओके, नाउ हियर यहाँ पे देखो नया एड्रेस मिल गया इसको। नया एड्रेस क्या मिल गया है, A6BA1B74, और मैंने माइनस माइनस बोला है। सो इट हैज व्हाट, go to the previous address that is with 4 लोकेशन, ओके। ये प्लस प्लस और माइनस माइनस ऑपरेटर हम जब अरिथमेटिक में यूज करते थे तो वो एक से बढ़ाता था, अभी यहाँ पे भी एक से ही बढ़ा है, ओके। बट इट गोज टू द प्रीवियस एड्रेस ऑफ वेरिएबल। एक वेरिएबल इंटीजर के लिए 4 मेमोरी लोकेशंस लगते हैं, 4 मेमोरी लोकेशन, सो इट विल गो टू द प्रीवियस वन, ओके। अभी हम ये सेम व्हाट वी विल डू, विल यूज दिस फॉर कैर, okay। Instead of this float, what I will do, instead of this float, now I will make it char। so मेरा डेटा टाइप char हो गया। this char का वैल्यू हम डालेंगे कोट में a, और मेरा पॉइंटर का भी डेटा टाइप मुझे क्या बदलना पड़ेगा अभी, char, ठीक है। we'll use it as a char। नाउ यहाँ पे मुझे फॉर्मेट स्पेसिफायर बदलना पड़ेगा, यहाँ पे करना पड़ेगा %c, एंड विल सी द एड्रेस। यहाँ पे मैं प्लस प्लस करती हूँ, इंक्रीमेंट ऑपरेटर लाइन नंबर 13 पे, ओके। सो हमने क्या किया अभी, वेरिएबल टाइप बदल दिया। नाउ दिस वेरिएबल इज ऑफ टाइप कैर, और उसका पॉइंटर क्या रहेगा, वो भी कैर टाइप का ही रहेगा। Now we'll print the value of variable var. This is a character type, so we use format specifier %c, and we have to print the address of variable. So I use here %var. This indicates address of variable, and the address of variable we are printing in the form of hexadecimal value. So we use format specifier %x over here. Now we assign the address of variable var to the pointer P1, line number 11. P1 equal to % of var. We print the address of variable P1 and we'll increment this, okay। Now we'll increment this। Now a char will take only 1 byte, so उसके next byte आने वाला है यहाँ पे, okay। So यहाँ पे देखो अभी value of is a, the address of variable is 17AFCC C07, same is address P1 को allocate हुआ है, और increment करने के बाद वो 7 के बाद क्या हो गया, 8 हो गया, okay। Now if I use decrement operator minus minus, वो decrement हो जाएगा। Now this is value of variable। Now it get new address, the same address is assigned over here, और ये 27 है, यहाँ पे हो गया 26,
Okay, so the operator we can use with the pointer is plus plus minus minus. What it will do? Plus plus operator will go to the next memory location after that variable. Okay, अगर किसी वेरिएबल को 4 मेमोरी लोकेशन लगते हैं तो प्लस प्लस 4 के बाद नेक्स्ट वाले को पॉइंट करेगा. ओके, और माइनस माइनस 4 के बाद प्रीवियस वाले को पॉइंट करेगा. जैसे कि कैरेक्टर को एक ही बाइट लगता है तो नेक्स्ट बाइट पे चला जाएगा वो. ओके, now in this way we can declare a pointer. Okay, so if my variable is of char type, its pointer is also of char type. If variable is of float type, its pointer is also of float type. If variable is of integer type, its pointer is also of integer type. Okay, now one more operation we can do with the pointer. ये operator use कर सकते हैं plus one. Okay, one second. Okay. ओके, नेक्स्ट इज अ नल पॉइंटर. ओके, हमने अभी कैरेक्टर का पॉइंटर देखा, फ्लोट पॉइंटर देखा, इंटीजर पॉइंटर देखा. नाउ नेक्स्ट इज अ नल पॉइंटर. ओके, null pointer when we assign a value. If I don't right now I don't have to decided that which variable I am going to say over it. Okay, so I have to make a empty a pointer with zero value. Okay, so in the declaration we called it as a null pointer. This is the way to declare the null pointer, line number 7. Okay, integer star ptr, or I will say it is a pointer p1 equal to null. Okay, zero नहीं लिखना है, क्या लिखना है, equal to null, and we'll display it. So what is the value at p1? It will be zero value. Okay, क्या value आएगी, zero value. So null pointer means what? It is the pointer which does not have any address. Okay, it does not have any address, and instead of keeping it empty we put it the zero inside it. Okay, so when we run it we'll get the value of pointer is 0. The value of pointer, that means in that pointer there is no address. In that pointer there is a 0 address. So when it is not decided that which address we want to put in this, which variable address we want to put in this pointer, in that case we declare a pointer into the we declare a pointer as a null pointer. Okay, okay, instead of declaring only pointers we declare, or it is a good practice to declare the pointer as a null pointer, and whenever in a programming we required we can assign the value to it. Okay, जहां पे हमें प्रोग्रामिंग में जरूरत पड़ती है हम वहां पे उसकी वहां पे वैल्यू असाइन कर सकते हैं. सो द पॉइंटर का डेटा टाइप कौन सा हो सकता है? द पॉइंटर का डेटा टाइप हो सकता है द फॉर विच वेरिएबल इट इज यूज टू it is used. Okay, for which variables address it is going to be saved into that pointer, that is the data type of that pointer. Okay, and second है आपका null pointer. Okay, null pointer means it is a pointer which is not having any address. Okay, so उसके अंदर कौन सी वैल्यू सेव हो जाएगी? जीरो वैल्यू सेव हो जाएगी. Now we'll see one more example of
Now next example is how to access the array element using a pointer. Okay. So first we declare a array. It takes lots of time, so I have taken ready-made program. Now first we declare a array of 5 integers. Okay, this is 10, 20, 30, 40, 50. Okay, these are the array of 5 integers. Okay, now this is pointer ptr because I want to save, this is an array of integers, so this pointer is of integer. Now I have taken one more integer count. Okay, now when I want to save the address of array, see here, first what we have doing, we are saving the address of 0th element. Okay, the indexing of array started with 0. array का indexing कहाँ से शुरू होता है, 0. so 0th element का address हम कहाँ पे डालेंगे, पॉइंटर में डालेंगे. okay, एंड यहाँ पे फॉर लूप यूज करो, नहीं तो वाइल लूप यूज करो. फॉर लूप भी यूज कर सकते हैं, फॉर आई इक्वल टू 0 टू लेस देन 5, वैसे भी यूज कर सकते हैं. एंड वी प्रिंट द elements of, okay, we print the elements of array. Now here we print array percentage d, that is count. मतलब अभी कौन सा है, अरे का कौन सा एलिमेंट है, एलिमेंट नंबर 0, एलिमेंट 1, एलिमेंट 2, एलिमेंट 3, लाइक दिस वे, इक्वल टू परसेंटेज d and the star ptr. That means star means what, now here it will print the value present at that pointer. यहाँ पे हमने क्या डाला है, एड्रेस डाला है, और स्टार ptr मतलब उस एड्रेस के ऊपर का वैल्यू. okay, it will print. now we'll increment the ptr plus plus. what it will do, it will go to the next वेरिएबल एड्रेस. सो नेक्स्ट वेरिएबल मतलब 20 का जो एड्रेस है वो 4 से बढ़ने वाला है. ओके, इंटीजर के लिए 4 मेमोरी लोकेशंस लगते हैं, तो इट विल इंक्रीमेंट बाय 4. एंड काउंट इंक्रीमेंट, पहले काउंट इक्वल टू 1 मुझे डिक्लेयर करना पड़ेगा, और काउंट इक्वल टू 0 मुझे डिक्लेयर करना पड़ेगा. ओके, then it will increment the count and it will end the for loop. Like this way, this will display the elements of array. Okay, now what I will do, I will take a array of character. Here A, B, D, E. Okay, this is the array of character. So उसका pointer क्या रहेगा, the pointer will be char. क्या रहने वाला है, char ही रहने वाला है. Okay, the pointer will be char. Now we have to access this, so we require a counter. So counter is always integer. So what we assign here, we assign the first address, 0th address over here, and we are accessing the element. Now here what I will do, I will use for loop. For suppose count to 0, count should be less than 4, and count plus plus. तो यहाँ पे हमें मैन्युअली करने की जरूरत नहीं है, हम यहाँ पे लिख सकते हैं. okay. Now what changes I need to do here, ये इंडेक्स है, यहाँ पे अरे का इंडेक्स, 0, 1, 2, 3, 4 हो सकता है. अरे के ऊपर का वैल्यू क्या है, अरे के अंदर कौन सा वैल्यू है, कैर टाइप वैल्यू है. तो यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ेगा, परसेंटेज सी करना पड़ेगा. क्या करना पड़ेगा, परसेंटेज सी. सो दैट विल बी अ वैल्यू प्रेजेंट एट दिस पीटीआर. एंड दिस पीटीआर इंक्रीमेंट मीन्स पहले वो पीटीआर किसको पॉइंट करेगा, ए को, फिर बी को, देन सी, लाइक दिस वे इट विल पॉइंट. So why it is printing only A, B, C, D, E क्यों नहीं प्रिंट कर रहा है,
Okay, here I am getting A B C D E, should get A B C D E, क्योंकि मेरे अरे में 5 एलिमेंट है ना। अभी यहाँ पे मुझे 4 ही एलिमेंट दिख रहा है, फोर्थ एलिमेंट क्यों नहीं दिख रहा है? कैन एनीवन टेल मी? अनम्यूट योर माइक, सी द प्रोग्राम। Count less than 4. यस, वहां पे क्या होना चाहिए? काउंट लेस देन 5 होना चाहिए, सो इट विल इंक्रीमेंट। Okay, so array element 0, A, B, C, D, E. Okay, so like this way we can access the array by using pointer. Okay, uh, we are going to use in our data structure array and pointer. This we are going to use in next unit. We are going to study, or in practicals also we are going to study in thoroughly. Okay, उसके कुछ practicals भी है, how to the array, and in that practicals we are going to access the array with the help of pointers. Okay, so आप pointer को कैसे access करेंगे? लाइक दिस वे। ओके, सो सपोज अभी मुझे पॉइंटर को रिवर्सली एक्सेस करना है, उल्टे नंबर डिस्प्ले करने, ए डी सी बी ए। सो दिस इज द जीरोथ एलिमेंट 0, ए का वैल्यू क्या है, काउंट इंडेक्स क्या है 0, बी का 1, सी का 2 3 एंड ई का रहेगा 4। तो मैं यहाँ पे क्या करती हूँ, 4 देती हूँ यहाँ पे। सो आई हैव इनिशियलाइज द पॉइंटर विथ लास्ट, ओके, मैक्सिमम -1 वैल्यू। सो यहाँ पे मेरा क्या, कहाँ से शुरू होगा? 4 से शुरू होगा, एंड इट शुड बी ग्रेटर देन -1, मतलब 4 3 2 1 0 यहाँ तक चलेगा। और काउंट प्लस प्लस की जगह पे हम यहाँ पे क्या करेंगे, काउंट माइनस माइनस। सेम वे पॉइंटर को मैं यहाँ पे क्या करूंगी, माइनस माइनस। ओके, सो व्हाट इट विल डू, इट विल रिवर्स। ओके, अभी मैंने यहाँ पे एड्रेस देते समय कौन सा एड्रेस दिया है, मैक्सिमम वाला एड्रेस दिया है, ई का इंडेक्स दिया है। तो पॉइंटर में अभी एड्रेस किसका चला गया, लास्ट एलिमेंट का। तो अभी यहाँ पे लास्ट एलिमेंट प्रिंट होगा, और फिर हम माइनस करके वापस पीछे चले आएंगे। सो हियर रिवर्स वे, अरे इंडेक्स दैट इज 4 पे क्या है, ई है, 3 पे डी है, 2 पे सी, 1 पे बी एंड 0। सो इट विल बी, यू कैन एक्सेस। ऐसे कुछ नहीं है कि आपको इनिशियली लेना है। ओके, जस्ट अरे का आपको इंडेक्सिंग समझ में आना चाहिए, एज पर दैट यू कैन डू इट। ओके, सेम we'll try to see into the visualizer. Okay, same code. Are you able to see the visualizer? I have shifted now from compiler to visualizer. Yes, ma'am. Okay. Now same code I have copy paste. Now see, here it is an array created. Okay. A pointer. It is an array of 5 elements. Okay. So when it will come to the 5, it will fill this array. Then pointer and count value. Then line number 5 पे आया. Now see, line number 6 से यहाँ पे चला गया. Now here you can see line 9 execute होता है तो क्या होता है? Now what it is doing, it is showing me that the pointer is pointing to this. यहाँ पे मैंने line number 9 पे क्या लिखा है, ptr is equal to address of array index 4. Okay, array index 4. So this is index number 4. Index number 4 का एड्रेस यहाँ पे वो पॉइंट कर रहा है. Okay, now next. now हमारा printf चलेगा अभी यहाँ पे. printf यहाँ पे विंडो है ऊपर. now array 4 डिस्प्ले हो गया. now when line number 16 is executed, ptr माइनस वो किसको पॉइंट कर रहा है,
इंडेक्स 3 को पॉइंट कर रहा है। पॉइंटर का पोजीशन देखो अभी चेंज हो गया, इंडेक्स 3 पे हो गया। ओके, ना वो प्रिंट हो गया ऊपर प्रिंटिंग के बॉक्स में, नाउ इट कम्स प्रीवियस। ठीक है, अगेन माइनस माइनस करेंगे तो अगेन प्रीवियस पे अलग आ गया, अगेन माइनस माइनस करेंगे तो अगेन प्रीवियस पे आ गया। ठीक है, लाइक दिस वे। सपोज मैं अभी एक कोड को एडिट करती हूँ और हम पहले से ऐसा करते हैं, मैं पहले यहाँ पे 0 एड्रेस लेती हूँ, काउंट वैल्यू क्या लेंगे, 0 से लेके इट शुड बी लेस देन 5 होना चाहिए, माइनस माइनस की जगह पे क्या होना चाहिए, प्लस प्लस। ओके, और यहाँ पे पॉइंटर की जगह पे प्लस प्लस। नाउ विल गेट द वैल्यू इनटू द अरे। लाइन नंबर 5 रन होने के बाद काउंट में 0 आ गया। नाउ लाइन नंबर 9, पॉइंटर ptr इज इक्वल टू एड्रेस ऑफ इंडेक्स 0, सो इट इज पॉइंटिंग मी टू द इंडेक्स 0। कहाँ पे पॉइंट कर रहा है, अरे के इंडेक्स 0 पे पॉइंट कर रहा है। ओके, सेम वे नेक्स्ट it will print first 0th element, then it will point to the next first element। ptr प्लस प्लस रन होता है तो अगले अगले लोकेशन पे चला जाता है। okay, so what we have to do, this is the way we are going to put the address of array, first any index starting address or end address। okay, स्टार्टिंग एड्रेस से अगर हम कर रहे हैं तो हम पॉइंटर को प्लस प्लस करके इंक्रीमेंट करके अरे के नेक्स्ट एलिमेंट एक्सेस करेंगे। अगर हम लास्ट एड्रेस पुट कर रहे हैं तो हम लास्ट से पीछे आने वाले हैं तो हम पॉइंटर को माइनस माइनस करके पीछे लेके आएंगे। ओके, दिस इज द वे वी एक्सेस द अरे बाय यूजिंग पॉइंटर। दिस इज द वे वी एक्सेस द अरे बाय यूजिंग पॉइंटर। ओके, एनी डाउट इन दिस? Yes, any doubt in this? Now I want to show you one more thing. Okay. Now there are IIT, okay, various IIT centers have a concept of virtual lab. Okay, now IITH is in IITH, this is link, okay, ये एड्रेस मैं आपको सेव कर दूंगी, CSE02 IITH hyderabad.vlab.ac.in। now this lab is computer programming, basic computer programming virtual lab। okay, virtual lab means it will see one by one। now we have just studied the pointers, so these are the some topics। okay, ये टॉपिक हमने ऑलरेडी कवर किए हैं, आप यहाँ पे जाके चेक कर सकते हैं कैसे ये यूज करना है वर्चुअल लैब, दैट आई विल टेल यू। okay, डेटा स्ट्रक्चर के भी है आगे, देर आर डिफरेंट। so there are for our syllabus in IIT we have near about 3 virtual labs are available। okay, so this is the first virtual lab। will ये पॉइंटर टॉपिक है, कैसे जाना है, go to this link, आपको ये दिखाई देगा, click on this pointer। now here we'll get 3 links। पहला है lab manual, here you will get the explanation। okay, what is pointer, how to declare the pointer, यहाँ पे दिया है declaration method। अभी यहाँ पे देखो this example, a equal to and of b। so a में क्या है, b का एड्रेस चला गया है, so this is the variables, this is the address। a का एड्रेस है 002, b का एड्रेस है 1008। so ये जो b का एड्रेस है 1008 वो कहाँ पे चला गया, कंटेंट ऑफ a 1008। so a equal to ampersand of b means b का एड्रेस चला जाएगा a में। so a के कंटेंट क्या है, एड्रेस ऑफ b। ओके, यहाँ पे दिया है, so you can read this first, ये प्रॉपरली रीड करो। रीड करने के बाद यू कैन गो टू द सिमुलेशन। कहाँ पे जाना है, सिमुलेशन में। सिमुलेशन में अभी यहाँ पे है कॉल बाय वैल्यू, कॉल बाय रेफरेंस। ओके, सो फर्स्ट विल टेक कॉल बाय वैल्यू।
ये सिमुलेशन है. सो यहाँ पे एक प्रोग्राम है ऑलरेडी. ओके, व्हाट इज दिस प्रोग्राम? दिस सिमुलेशन विल simulate this and we will able to see how it is working. पहले यहाँ पे एक इंटीजर a लिया है, उसका वैल्यू क्या है 10 and here first printed the value of a and the address of a. address of a कैसे प्रिंट किया है? ampersand of a. now here it a integer star p लिया है, that is asterisk p, that means पॉइंटर को डिक्लेयर किया है. फिर यहाँ पे पॉइंटर में a का एड्रेस डाला है, फिर पॉइंटर के अंदर क्या वैल्यू है वो डाली है, और उस पॉइंटर का क्या एड्रेस है, उस पॉइंटर को भी कुछ तो एड्रेस रहेगा वो यहाँ पे डाला है. पॉइंटर के ऊपर क्या वैल्यू है वो डाली है, और मैंने वैल्यू चेंज कर दी, वो एड्रेस के ऊपर की वैल्यू चेंज कर दी, तो वो क्या रहेगा? नाउ वी क्लिक ऑन टू द स्टार्ट. स्टार्ट में अभी एक एक लाइन रन हो रहा है. यहाँ पे रेड आ गया, देखो वॉइड मेन यहाँ पे है वो. अभी नेक्स्ट करूंगी मैं, यहाँ पे आ गया इंट a इक्वल टू 10. तो अभी आप यहाँ पे देखो a, और a का वैल्यू यहाँ पे ये 4 एड्रेसेस है a के लिए. 60 है, दिख रहा है यहाँ पे a का वैल्यू 60. सो ये रिवर्स वे से लिया है. 60, 59, 58, 57, ये 4 एड्रेसेस a को मिले हैं. उसमें से एक एड्रेस में उसका वैल्यू चला गया है 10. बाइट नंबर 4 में देखो 10 दिख रहा है. ओके, नेक्स्ट लाइन पे जाएंगे. इट विल प्रिंट द वैल्यू. यहाँ पे दिखेगा कोड आउटपुट में. यहाँ पे दिखेगा वैल्यू ऑफ a इज 10. अभी a का एड्रेस क्या है? यहाँ पे देखो a का एड्रेस है 60. तो मैं ये जो नेक्स्ट लाइन रन होगा तो वो यहाँ पे आएगा वैल्यू ऑफ a इज 60. नाउ p डिक्लेयर हो गया इंट p. वो कहाँ पे चला जाता है? इंट p. नेक्स्ट लाइन रन करते इंट p. ओके, अभी आप देखो कहाँ पे चला गया p. यहाँ पे मैंने डिक्लेयर किया तो p को कौन सा एड्रेस मिला है? p को एड्रेस मिला है 56. p का एड्रेस है 56. p इज ऑल्सो अ वेरिएबल, उसे भी एड्रेस रहेगा. अभी p के ऊपर हम डेटा डालेंगे. नेक्स्ट लाइन रन करते. p इक्वल टू एंड ऑफ a, ampersand of a, that means address of variable a will be saved into p. a का एड्रेस क्या है? 60, वो चला जाएगा p में. सो यहाँ पे p में बाइट 4 में देखो यहाँ पे दिख रहा है 60. ओके, a का एड्रेस है 60, वो चला गया है p में. ओके, नाउ विल प्रिंट द वैल्यू ऑफ p. p का वैल्यू क्या है? 60, वो प्रिंट होगा यहाँ पे. आउटपुट में देखो वैल्यू ऑफ p इक्वल टू 60. नीचे वैल्यू ऑफ p इक्वल टू 60 यहाँ पे दिख रहा है. ओके, एड्रेस ऑफ p क्या आएगा? कैन एनीवन टेल मी व्हाट विल बी द एड्रेस ऑफ p? अगर मैं नेक्स्ट लाइन जाती हूँ, यहाँ पे रेड के नीचे नेक्स्ट लाइन करती हूँ, नेक्स्ट लाइन आएगा तो दैट विल बी एंड ऑफ p, ampersand ऑफ p. तो क्या प्रिंट हो सकता है? कैन एनीवन टेल मी? अनम्यूट योर माइक एंड टेल. 56. यस, एड्रेस ऑफ p आएगा 56. ये टेबल में देखो p का एड्रेस. एम्परसेंट हम लगाएंगे किसी भी वेरिएबल के सामने तो उसका एड्रेस प्रिंट हो जाता है, उसका एड्रेस वहां पे आ जाता है. सो यहाँ पे आ गया एड्रेस ऑफ p इज 56. ओके, वैल्यू ऑफ p एट द एड्रेस. ओके, ये देखो मैंने वैल्यू एट द एड्रेस ऑफ p. ठीक है, p के अंदर कौन सा एड्रेस है? 60, वो 60 पे जाएगा. 60 एड्रेस पे क्या वैल्यू है? 10, वो 10 वैल्यू यहाँ पे दिखाएगा. सो यहाँ पे दिख रहा है. नाउ नेक्स्ट मैंने रन किया है स्टार p इक्वल टू 20, एस्ट्रिक p इक्वल टू 20. दैट मीन्स एस्ट्रिक p मीन्स व्हाट? एड्रेस. ओके, एड्रेस. ये जो 60 है, ये 60 एड्रेस का वैल्यू 20 हो गया. नाउ यू कैन चेक एड्रेस 60 में a का वैल्यू क्या हो गया है? 20 हो गया है. हम p का वैल्यू नहीं चेंज कर रहे. स्टार p इक्वल टू 20 नहीं किया है मैंने क्या किया है? एस्ट्रिक ऑफ p. दैट मीन्स p के अंदर जो एड्रेस है उस एड्रेस के ऊपर, मतलब p के अंदर एड्रेस क्या है? 60 है, 60 के ऊपर वैल्यू जाएगा. 60 के ऊपर वैल्यू चला गया है 20. सो दैट विल बी अ न्यू वैल्यू ऑफ a इज इक्वल टू 20. like this way you can simulate. okay, so आपको कोई भी टॉपिक लेंगे उसमें पहले लैब मैनुअल आएगा, सिमुलेशन आएगा और क्विज आएगा. ओके, ये क्विज के कुछ पॉइंट हमने कवर करने रह गए हैं,
स्टिल यू कैन ट्राई हर एक टॉपिक के लिए। प्रीवियस वाले टॉपिक पे आप जाओ, ये जो CSE 02 है, CSE 02 में वी हैव दिस मच ऑफ एक्सपेरिमेंट आर अवेलेबल। टोटल कितने हैं? 9 है, 9 एक्सपेरिमेंट्स अवेलेबल है। ओके, उसमें से अभी हमारा कौन सा नहीं हुआ है? तो हमारा स्ट्रक्चर नहीं हुआ है। बेसिक कंट्रोल फ्लो वी हैव डिड, इफ एल्स कंडीशन हमने किया है, रिकर्शन किया है, पॉइंटर किया है, फंक्शंस किए हैं, न्यूमेरिकल एक्सप्रेशंस वी हैव डिड। सो यू ट्राई दिस। ओके, ये आप एक्सपेरिमेंट ट्राई कर सकते हैं। देर आर क्विज ऑल्सो, simulations is also present. Okay, this will help you to clear your more concepts. Okay, and this virtual lab is also mentioned in our syllabus. Okay, use of virtual lab is also mentioned in our syllabus. Next data structure के लिए related भी हम use करने वाले। Okay, so I have just given you the introduction of this CSE 02 virtual lab, how to use this. Okay, you can use and you can see the simulations. Okay, जैसे हमने विजुअलाइजर में देखे हैं वैसे ही हमें सिमुलेशंस यहाँ पे दिखाई देंगे। ओके, सो एस्टरडे जो असाइनमेंट दिया था वो असाइनमेंट आज